Hello everyone, welcome to Physicam Academy. I hope you all are doing good and subscribe to our YouTube channel. Guys, this is our timetable for the chemistry. हम 3 months में complete chemistry syllabus को खत्म करेंगे and उसकी सारी assignment, PY quiz भी करेंगे. इसके लिए आपको क्या करना है? नीचे description box में Telegram link है, उसको join कीजिए. और उस टेलीग्राम लिंक में आप अपनी सारी क्वेश्चंस, डाउट्स भेज सकते हैं एंड असाइनमेंट्स, नोट्स, पीवाईक्यूज ये सब भी पा सकते हैं. सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बायो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हमने लास्ट क्लास देखा था. सो दिस इज आवर टॉपिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था. आज हम क्या पढ़ेंगे? हीमोग्लोबिन का कोऑपरेटिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हेडिंग दीजिए कोऑपरेटिव इफेक्ट. कोऑपरेटिव इफेक्ट. दिस इज कोऑपरेटिव इफेक्ट. कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या है? द phenomenon where the addition of dioxygen to one heme subunit encourages the addition of the dioxygen molecules to the other heme subunits is called cooperative effect. That means one molecule of oxygen जब hemoglobin पे अटैच होता है तो वो दूसरे molecule को फेवर करता है. यानी कि अगर एक अटैच हो गया तो दूसरा अटैच होने में इजी होता है. अगर दूसरा अटैच हो गया तो तीसरा अटैच होने में इजी होता है. That is called cooperative effect. तो लिखिए the phenomenon where, that is E, the addition of dioxygen molecules to the other heme subunits. The phenomenon where the addition of dioxygen molecule to heme subunit molecules to heme subunit encourage the addition of the dioxygen molecule to the other heme subunit. It's called cooperative effect. So this is called cooperative effect. The phenomenon where the addition of dioxygen molecules to heme subunit encourages the addition of the dioxygen molecule to the other heme subunits. मतलब one attach होने के बाद वो दूसरे को फेवर करता है. Then हम देखेंगे the bonding of one oxygen molecule to a subunit of hemoglobin reduces the steric hindrance in the other subunits. यानी कि जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है
वो स्टेरिक हिंड्रेंस कम कर देता है दूसरे को अटैच होने के लिए, सो दूसरे मॉलिक्यूल इजीली उसके साथ अटैच हो सकता है। द बॉन्डिंग, लिखिए द बॉन्डिंग of one oxygen molecule, the bonding of one oxygen molecule to a subunit of hemoglobin of Hb hemoglobin reduces the steric hindrances in the other subunit, in the other subunit due to the breaking of salt bridge. ये कैसे स्टेरिक हिंड्रेंस कम करता है? जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसको ब्रेक करके स्टेरिक हिंड्रेंस रिड्यूस करता है बाय सबयूनिट ड्यू टू breaking of salt bridge. Salt bridges. So कैसे होता है देखिए, hemoglobin plus O2, these are all reversible reaction. HBO, इसको हम मिटा देते हैं. 1 second guys. Eraser. Okay. मिट गया. So then HP HbO2, ये जब फर्स्ट ऑक्सीजन आकर अटैच होगा देन ये क्या हो गया, HbO2 वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो गए, ये दूसरे मॉलिक्यूल को इजीली अटैच होने में हेल्प करेगा बाय ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज. HbO2 O2 HBO HbO2 whole twice. A2 HBO2 O2 की twice. Then as there is a reversible reaction, so इसकी equilibrium constant क्या है? K1. इसकी equilibrium constant K2. Then HbO2 2 plus O2. ये किसको फेवर करेगा? HbO2 3. Then HbO2 3 plus O2. ये क्या होगा? HbO2 4. So this is K3 and this is K4. As one molecule दूसरे molecule का attach होने में help करता है, so K4 is greater than K3 and greater than K2 and greater than K1. So this is important. That's why K4 greater than K3 greater than K2 greater than K1. These are क्या है? Successive equilibrium constant. Successive equilibrium constant. अगर किसी को भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डाउट है तो ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे. सो ये क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि वन बाइंडिंग फेवर्स द अदर O2 बाइंडिंग, मतलब
एक ऑक्सीजन अटैच होने के बाद वो दूसरे के साथ इजीली अटैच हो सकता है, यानी कि अगर दो मॉलिक्यूल अटैच हो वो तीसरे के साथ इजीली अटैच हो सकता है ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। जब फर्स्ट जब फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं होता, वो क्या होता है, डीऑक्सीजन के फॉर्म में होता है, डीऑक्सीमोग्लोबिन। डीऑक्सीमोग्लोबिन कौन से फॉर्म में होता है, टी स्टेट यानी कि टेस्ट फॉर्म में होता है। ये ऐसे है, ये है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर बाइंड हुआ तो ये आया इधर O2, देन अगर दूसरा अटैच हुआ तो ये है O2, ये भी O2, तीसरा अटैच हुआ तो ये O2, ये O2, O2, रिवर्सिबल साइन, दिस इज रिवर्सिबल। अब चार मॉलिक्यूल अटैच हो गया है तो O2, 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 O2. So this is deoxyhemoglobin and this is T form यानी कि tensed form. This is F. T form ये क्या है? ये oxyhemoglobin. So this is relaxed form, R form. And ये देखिए, वन हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। सो एंड ये है टी फॉर्म, ये है आर फॉर्म। सो आर फॉर्म की तरफ अगर ये रिलैक्स हो जा रहा है आफ्टर ऑक्सीजन बाइंडिंग, देन द रिएक्शन फेवर टुवर्ड्स आर स्टेट। रिएक्शन फेवर्स towards R state. Okay. A. Sorry. This is A. Favorable. And then hemoglobin is red color. हम सब जानते हैं कि हमारा ब्लड कौन सी कलर का है, रेड कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन इज HbH, red color, due to MLCT, MLCT, that is metal to ligand charge transfer, metal to ligand चार्ज ट्रांसफर। हीमोग्लोबिन क्यों रेड कलर है, क्योंकि इसमें मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर। अगर किसी को MLCT के बारे में कुछ भी डाउट है तो ये सब हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। एंड दिस इज पाई स्टार, इफ दिस इज पाई, देन इसके बीच ट्रांजिशन होगा from pi orbital of heme group to the vacant orbital of the ligand, metal to ligand, heme group from, इसके नीचे लिख दीजिए, from pi orbital of heme group, pi orbitals of heme group to the vacant orbitals of ligand. This is MLCT, metal to ligand charge transfer. मेटल क्या है, आयरन है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके
मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन खत्म होता है। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या था? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। देन हम पढ़ेंगे मायोग्लोबिन के बारे में। हेडिंग लीजिए मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, बट मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है। इट इज द ऑक्सीजन स्टोरेज हीम प्रोटीन। मायोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन स्टोरेज हीम प्रोटीन। ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोटीन चेन विद 153 अमीनो एसिड्स। हमने हीमोग्लोबिन के में क्या पढ़ा था कि उसमें 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोटीन चेन। ये इसमें क्या है? वन प्रोटीन चेन है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोटीन चेन विथ कितने अमीनो एसिड? 153 अमीनो एसिड। ओके। The active site is similar to hemoglobin. इसके एक्टिव साइट हीमोग्लोबिन के सिमिलर है। यानी कि हीमोग्लोबिन के एक्टिव साइट में क्या होता था? डीऑक्सीहीमोग्लोबिन में 4 साइट पे 4 पोर्फायरिन रिंग नाइट्रोजन के साथ अटैच होता था, एंड देन फिफ्थ साइड इज अटैच्ड बाय the imidazole ring of histidine, and sixth side is vacant. If deoxyhemoglobin, then it is H2O. If oxyhemoglobin, in sixth side, it is O2. It is similar in myoglobin. The active side is similar as hemoglobin. And HB is called tetramer, but myoglobin is consists of one subunit. That's why it is the monomer of hemoglobin. So, अब हम क्या लिखेंगे? एक्टिव साइट is similar to hemoglobin. Then HB is called as tetramer of myoglobin. Myoglobin one subunit में consist है and hemoglobin इसकी tetramer है. HB is tetramer of myoglobin. और हम ऐसे भी कह सकते हैं myoglobin is monomer of hemoglobin. Then ये क्यों है? Because myoglobin contains of only one subunit. हमने पहले देखा था कि ये सिंगल प्रोटीन चेन में है। Then इसका रीजन भी लिख लेते हैं। बिकॉज क्यों इसको टेट्रामर बोलते हैं? हीमोग्लोबिन को क्यों मायोग्लोबिन का टेट्रामर बोलते हैं? बिकॉज मायोग्लोबिन, ये MB यानी कि मायोग्लोबिन कंटेन्स only one subunit. That's why it is called hemoglobin is called tetramer of myoglobin. तो इसकी मायोग्लोबिन की मोलर मास क्या है? मोलर मास of myoglobin is 1700. Then in myoglobin अगर हीमोग्लोबिन में आयरन था तो इसमें भी आयरन है, क्योंकि एक्टिव साइड इज सेम एज हीमोग्लोबिन। सो इसमें Fe2 के फॉर्म में होता है। इफ ऑक्सीजन अटैच हुआ इसके साथ, देन इट कन्वर्ट टू मिथ हीमोग्लोबिन।
और ये अगर रिवर्सिबली यहाँ पे मायोग्लोबिन के कन्वर्ट हुआ तो इसको क्या कहते हैं, मिथ हीमोग्लोबिन, मिथ मायोग्लोबिन रिडक्टेज। ये कौन सी एंजाइम करता है, मिथ मायोग्लोबिन रिडक्टेज। और ये मीथ हीमोग्लोबिन क्या करता है, इट कैन नॉट बाइंड विथ ऑक्सीजन, ये और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बाइंड विथ O2, इट कैन नॉट बाइंड विथ O2। सो दिस एंजाइम क्या करता है, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ मिथ मायोग्लोबिन टू मायोग्लोबिन। ये इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन को कहता है। हम लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में, दिस एंजाइम यानी कि विच एंजाइम, मिथ मायोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम। इसको मिथ मायोग्लोबिन reductase enzyme is responsible for each responsible for conversion of myth myoglobin to myoglobin, myth myoglobin to myoglobin. So that is all about myoglobin. हमने क्या पढ़ा, hemoglobin is the hemoglobin acts as oxygen transport system, और वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है। सो अब हम पढ़ेंगे नॉन हीम प्रोटीन्स के बारे में, एज ऑक्सीजन कैरियर एंड ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम। सो हेडिंग दीजिए नॉन हीम प्रोटीन, नॉन हीम प्रोटीन। नॉन हीम प्रोटीन में हम क्या पढ़ेंगे, हेमोसियानिन, हेमोसायनिन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। हेमोसियानिन क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इट ट्रांसपोर्ट, इसका मेन फंक्शन है इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड इट इज अ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। इसका कलर क्या है, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। हेमोसियानिन में क्या है, एज इट इज नॉन हीम प्रोटीन, नॉन हीम का मतलब नो हीम ग्रुप, हीम ग्रुप नहीं है, हीम ग्रुप यानी कि मतलब परफायरिन रिंग नहीं है, हीम ग्रुप परफायरिन प्लस आयरन ये दोनों नहीं है। और ये देखिए हेमोसियानिन, ये इंपॉर्टेंट है, ना इसमें हीम ग्रुप है ना ही सियानो ग्रुप है, नो हीम ग्रुप एंड नो सियानो ग्रुप, सायनो ग्रुप, नो सायनो ग्रुप। इसके नाम से पता चलता है कि हीम ग्रुप भी होगा सियानो ग्रुप भी होगा, पर इसमें ना हीम ग्रुप है ना ही सायनो ग्रुप है। तो अब हम देखते हैं इसके एक्टिव साइट ऑफ अब हम पहले डीऑक्सी हेमोसियानिन के बारे में देखते हैं, फिर हम ऑक्सी हेमोसियानिन के बारे में देखेंगे। एज इट एक्ट्स एज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। सो पहले जब ऑक्सीजन अटैच होने के पहले इसकी स्ट्रक्चर क्या है, एज डीऑक्सी हेमोसियानिन फॉर्म,
and after attached with oxygen, oxyhemocyanin form. हम पहले देखेंगे deoxyhemocyanin form. Active site of deoxyhemocyanin. This is A. deoxyhemocyanin. ठीक है, इसमें मेटल क्या है? कॉपर है, क्योंकि इसमें हीम ग्रुप तो नहीं है। अगर हीम ग्रुप होता तो आयरन आता। याद रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट है। कौन सी मेटल प्रेजेंट है इन हेमोसियानिन? एन ऑफ एन यहाँ पे एन एच, यहाँ पे भी एन एन, यहाँ पे भी एन। सो यहाँ पे इसे अदर ग्रुप से एन 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 so this is n n। ये है वन साइड। हम डीऑक्सीहेमोसियानिन को देखेंगे। मेरे साथ साथ आप भी बनाइए। कॉपर 1, एन हिस्टिडीन। ये क्या था? ये था इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग। ये था हिस्टिडीन का अदर ग्रुप, इमिडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडीन। इसमें भी अटैच्ड है इमिडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडीन, इमिडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडीन। देन इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन। ये क्या था? ये सिर्फ एक यूनिट था। हम इसके जैसा 2 यूनिट बनाएंगे। हम 2 यूनिट बनाएंगे। कॉपर 1, एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन। ये 2 सब यूनिट्स, ये एंड 2 सब यूनिट्स इज कॉल्ड डीऑक्सीहेमोसियानिन। ये दोनों सब यूनिट क्या है? डीऑक्सी, मिलकर डीऑक्सीहेमोसियानिन। अच्छा, कॉपर इन +1 स्टेट, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या है? +1 है। यानी कि विच सिस्टम? इट इज D10 सिस्टम। Cu+1 is D10 system as and it is completely filled D10 copper 1। क्या है? D10 सिस्टम है। D10 सिस्टम हो तो नो DD ट्रांजिशन, नो DD, क्योंकि d ऑर्बिटल तो फील्ड है। नो DD ट्रांजिशन। दैट्स व्हाई डीऑक्सीहेमोसियानिन कलरलेस है। डीऑक्सीहेमोसियानिन क्या है? इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस। सो जब ये क्या था? डीऑक्सीहेमोसियानिन। ये जब ऑक्सीजन अटैच नहीं होता था, जब ऑक्सीजन आएगा, यानी जब ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होगा, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा? देखिए, कॉपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्रिजिंग की तरह इसके साथ अटैच होगा। CU, इसमें क्या था? एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन। इसमें क्या था? एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन एंड एन हिस्टिडीन।
इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है याद रखने का। आपको आप जितने पढ़ोगे इतना उतना याद रखोगे। तो इसको रेगुलर कुछ कुछ पढ़ लेना ताकि ये माइंड से आउट ना हो जाए। देन ये क्या है, ये किसके स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीहेमोसियानिन। दिस इज एक्टिव साइट ऑफ ऑक्सीहेमोसियानिन। इसमें क्या डिफरेंस है, डीऑक्सीहेमोसियानिन में ऑक्सीजन अटैच नहीं था, पर दिस इज डीऑक्सीहेमोसियानिन, इसमें ऑक्सीजन अटैच नहीं था। ऑक्सीहेमोसियानिन में ऑक्सीजन अटैच है एज ब्रीजिंग, मतलब ये ब्रीज की तरह इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इन डीऑक्सीहेमोसियानिन, अब हम इसके एक्टिव साइट के बारे में पढ़ेंगे। इन डीऑक्सीहेमोसियानिन at active site in deoxyribonucleic, इसके एक्टिव साइट में क्या है, एट एक्टिव साइट क्या क्या प्रेजेंट है, 2 कॉपर एटम, दो कॉपर एटम प्रेजेंट है, 2 कॉपर एटम प्रेजेंट, and each copper atom is present in +1 oxidation state. Each copper atom is in +1 oxidation state. Each copper atom is in +1 oxidation state. आज हमने देखा था कि +1 oxidation का स्टेट मतलब it is D10 system. D10 system, so no DT transition. हमने कहाँ देखा था, यहाँ no DT transition, that's why no color, यानी कि deoxyhemocyaniin is colorless. And per copper atom 3 histidine ligand are present, so it gains T shape. अब हम लिखेंगे क्या, per copper atom 3 histidine, 3 N histidine के N के साथ अटैच था इमिडाजोल रिंग के, 3 histidine ligands are present. So it gains T shape, यानी कि टेंस shape due to the bulkiness. T shape. Why? Due to bulky group. Due to bulky group. तीन इन हिस्टिडीन के अटैच होने के बाद ये बल्कियर हो जाता है, दैट्स व्हाई ये टेंस फॉर्म पे चला जाता है। और डीऑक्सीहेमोसियानिन ESR इनएक्टिव है। ESR मींस इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ये स्पेक्ट्रा नहीं दिखाता है। डीऑक्सीहेमोसियानिन is ESR, that is क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इनएक्टिव। डीऑक्सीहेमोग्लोबिन इज ESR इनएक्टिव, ये ESR इनएक्टिव है। तो अगर किसी को ESR में कुछ भी डाउट है तो ये भी हम जानेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि ESR वन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा है। तो ये हो गया डीऑक्सीहेमोसियानिन के बारे में। इन ऑक्सीहेमोसियानिन इट फॉर्म डाइमर, ये हमने देखा कि ये डाइमर के फॉर्म में है। सो हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ बना देते हैं।
ताकि इजी हो। Copper, CO, this is copper, and histidine, यहाँ पे भी N histidine, यहाँ पे N histidine. So as oxygen acts as breathing, so eta 2 for oxygen is 2 per copper atom. यानी कि 1 ऑक्सीजन कितने कॉपर के साथ अटैच है? 2 कॉपर के साथ अटैच है। दैट्स व्हाई eta 2। ये हम सब eta 2 ये सब का मीनिंग हमें पता चलेगा ऑर्गेनोमेटालिक में। तो कॉपर इज प्रेजेंट इन यहाँ पे डीऑक्सीहेमोसायनिन में क्या था? कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, पर यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। कॉपर इज इन +2 स्टेट। अब हम लिखेंगे कि इन ऑक्सीहेमोसायनिन copper is in +2 oxidation state. If it is +2 oxidation state, then it is in which system? It is D9 system. क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1 D10. So कॉपर 2+ का क्या है? कॉपर 2+ D9 सिस्टम। ये 1 यूनिट का एंड ये अदर यूनिट का, क्योंकि 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट एंड ये 1 यूनिट, so 2 यूनिट है D9 सिस्टम। दिस इज 9 एंड इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9। यहाँ पे भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9 इलेक्ट्रॉन। ये जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये एंड ये यहाँ पे भी जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये मिलकर कपल हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। ये दोनों कपल होके एक सबसेल में और एक ऑर्बिटल में आ जाएंगे। दैट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। This is anti-ferromagnetic coupling. As two electrons are coupled, so it is diamagnetic because कोई unpaired electron ही नहीं रहा। ये दो unpaired electron जो था, ये मिलकर couple होकर anti-ferromagnetic coupling कर देते हैं। So it is diamagnetic. क्या है? ऑक्सीहेमोग्लोबिन Oxyhemocyanin is diamagnetic. As it is diamagnetic, so it is ESR, electron spin resonance inactive. अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं इजीली?
कॉपर प्लस अगर यहाँ है, ये क्या है, D10 सिस्टम। कॉपर प्लस कहाँ था, ये था कहाँ पे, डीऑक्सी पे, डीऑक्सी हेमोसियानिन पे। ऐसे ही ये वन सब यूनिट है, इसकी अदर सब यूनिट, ये भी D10 सिस्टम ही था। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये सर इनएक्टिव था। ये क्या है, ये दोनों किसकी यूनिट है, डीऑक्सी हेमोसियानिन की, हेमोसाइनिन। देन ये कॉपर कौन से स्टेट में आता है आफ्टर बाइंडिंग विद ऑक्सीजन, कॉपर 2+, ये भी क्या किस ऑक्सीडेशन पाएगा, कॉपर 2+। ये दोनों कॉपर 2+ बाइंड किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, O2 में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सी हम कहाँ पे इसको कलर चेंज कर लिख देते हैं व्हाइट पे, यस, इट इज ऑक्सी हेमोसाइनिन। So this unit is oxyhemocyanin and this is deoxyhemocyanin. Okay. If O2, यहाँ पे हमने क्या देखा, O2-, यानी कि ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में था, ब्रिज की तरह आग कर रहा है यहाँ। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। If O2 plus 2 electron, then O2 2-, it is peroxide form, peroxide form. If oxygen molecule 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये क्या होता है, पेरोक्साइड फॉर्म को चला जाता है। तो Cu2O2, यहाँ पे क्या है, Cu2 2+, O2 2-, यानी कि कॉपर इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर क्या है, यहाँ पे मेटल है, ये क्या है, O2 2-, लिगेंड की तरह करेगा, लिगेंड है। और ये कौन सी लिगेंड है, दिस इज पेरोक्साइड लिगेंड, पेरोक्साइड लिगेंड, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। पेरोक्साइड लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इसके चार्ज 2- है, इलेक्ट्रॉन रिच है। सो जहां पे बहुत इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि O2- is electron rich, so it can give electron to vacant orbital of metal. अगर मेटल ऑर्बिटल पे वैकेंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सो कलर इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। हमने पढ़ा था कि ऑक्सी हेमोसियानिन का कलर क्या है, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स है। तो ये कलर कैसे आता है, ये तो यहाँ पर था एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हो गया यहाँ पे। सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायमैग्नेटिक। तो कलर किस वजह से आता है, कलर आता है ड्यू टू LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। सो कलर इज ड्यू टू, क्योंकि लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है और मेटल की साइड वैकेंट है, दैट्स व्हाई कलर इज ड्यू टू LMCT, that is ligand to metal charge transfer. Okay. Guys, ये that's all about the हेमोसियानिन। हमने क्या क्या पढ़ा हेमोसियानिन में, इसके डीऑक्सी फॉर्म को एंड इसकी ऑक्सी फॉर्म को। अब हम एक PYQ कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, इन biological system the metal ion involved
in the dioxygen transport is option A cobalt, option B zinc, option C manganese, option D copper. क्या था क्वेश्चन में? इन बायोलॉजिकल सिस्टम द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन कौन करते हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हेमोग्लोबिन करता है और हमने पढ़ा हेमोसियानिन भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है. पर यहाँ पे आयरन ही नहीं है. सो हेमोसियानिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है एंड हेमोसियानिन में मेटल क्या है? कॉपर है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. कॉपर इज इट इज वन इट इज ए PYQ यानी कि ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन. तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये आपको ज्यादा मेहनत लगेगा इसमें. तो पढ़ते रहिए एंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. इसके सारे क्वेश्चंस, इसके असाइनमेंट्स, इसके PYQs आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. So must join the Telegram link given in the description. So thank you.